یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کچھ لوگ خاموشی سے اپنے گھر کے حالات بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ صرف دکھاوے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ان تمام ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو پیسہ بچانا چاہتی ہیں لیکن بچا نہیں پاتی، اتنی مہنگائی کے دور میں سیونگ کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی۔ آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اگر آپ سیونگ کرنا چاہتی ہیں یا پھر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پیسے بچانا سیکھیں، آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی خوشحالی لائیں، تو پھر ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگ جائے نا تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں بہنوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ روزانہ کے صرف 50 روپے بچا کے رکھیں تو آپ اپنے گھر کے حالات بدل سکتی ہیں، تو شاید آپ یقین نہیں کریں گی۔ اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ 50 روپے میں تو آتا ہی کیا ہے، تو آپ غلط سوچ رہی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حالات بدلنے کے لیے نا ہمیشہ ایک ایک روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کے حالات بجٹ سیٹ کرنے کے لیے ایک ایک روپیہ کام آتا ہے۔ ہماری یہ جو روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں نا بے قابو سی، ان کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج میں بھی انہی حالاتوں میں ہوتی اگر میں نے یہ سیونگ سٹارٹ نہ کی ہوتی۔ جس طرح میرے بیٹے کے آج شوز ٹوٹ گئے تھے تو اچانک مصیبت آ گئی ہے، اچانک مسئلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اگر میں نے سیونگ سٹارٹ نہ کی ہوتی تو شاید میں بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوتی۔ آج میرے بیٹے نے اسکول سے آتے ہی مجھے بتا دیا کہ ماما میرے شوز ٹوٹ گئے ہیں، تو میں نے جو سیونگ رکھی ہوئی تھی اس میں سے فوراً پیسے نکال کر اپنے بیٹے کو شوز دلوا دیے ہیں۔ اور اگر میں نے یہ سیونگ نہ کی ہوتی تو شاید مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے اور ساتھ میں مسئلہ بھی بنتا، گھر کا بجٹ بھی خراب ہوتا اور قرضہ بھی سر پہ آ جاتا۔ دیکھیں، کچھ لوگ خاموشی سے اپنے گھر کے حالات سنبھال لیتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف دکھاوے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو تمام ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو مہینے کے آخر میں پریشان ہو جاتے ہیں، تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو رات کو چپ چاپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آخر کار ہماری زندگی کب بدلے گی، آخر کار ہمارا فیوچر کب بنے گا۔ اگر آپ بھی یہ سب کچھ سوچ رہی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کی سوچ بدلنے والی ہے۔ آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ کی سوچ میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئے گی۔ تو دیکھو بہنوں، آج میں آپ کو کوئی امیر بننے کا خواب نہیں دکھا رہی، میں صرف ایک سمجھداری والی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، بالکل سمپل بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں۔ اتنی مہنگائی کے دور میں آپ تبدیلی لائیں، اپنے گھر کو خوشحال بنائیں۔ اگر آپ روزانہ کے صرف 50 روپے بچانا شروع کر دیں گی، فرض کریں آپ روزانہ اپنے بچوں کو پیسے دیتی ہیں، روزانہ اسکول ٹائم پہ بچے، ہر گھر میں یہی رول ہے، ہر بچہ پیسے لے کر جاتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو جتنے 50 روپے، تو آج کل کے دور میں بچے 50 روپے سے کم پیسے لیتے ہی نہیں ہیں۔ فرض کریں آپ 3 بچوں کا خرچ نکالتی ہیں 50 روپے، تو ان کے ساتھ آپ 50 روپے الگ کر کے رکھنا بھی شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے الگ جو سیونگ ہو رہی ہوگی، یہ آپ کا فیوچر پلان ہوگا۔ اب آپ کہیں گی کہ 50 روپے تو بچے کھا جاتے ہیں، تو جو میں نے 50 سنبھالے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اور بس یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس زیادہ پیسے آئیں گے، زیادہ ہمارے پاس کوئی بڑا بزنس ہوگا، تب ہم پیسے سنبھالنا شروع کریں گے، اور ہم اسی سوچوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے کئی سال قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ گزار دیتے ہیں، قیمتی سرمایہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ کچھ بڑا سوچتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو مضبوط بناتے ہیں، وہ لوگ اپنی عادتوں کو مضبوط بناتے ہیں، لیکن ہم صرف خالی خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں بہنوں، میں جانتی ہوں 50 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اگر روزانہ آپ اپنے گھر کے خرچوں میں سے، گھر کے خرچ میں سے 50 روپے الگ کر کے رکھنا شروع کر دیں تو یہ بھی کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ یقین کریں، میں نے اپنے جو میرے ہسبینڈ مجھے ہر چیز روزانہ کی دے کے جاتے ہیں، میں نے اس میں سے سیونگ شروع کی ہے، اور میں نے اس 50 روپے کی سیونگ کی مدد سے میں نے گھر کا اتنا سامان بنا لیا ہے، گھر کا اتنا کچھ میں نے بنا لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گھر میں سمجھدار عورت ہو تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بے وقوف ہیں یا پھر آپ میں سمجھ نہیں ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی آج سے اپنی سیونگ شروع کریں، اور یہ
50 रुपए की मदद से आपको नहीं पता कि आप अपनी कितनी बड़ी मदद कर रही हैं, आप अपना कितना बड़ा सर से बोझ उतार रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके यही 50 रुपए आप रोज़ाना संभाल के रखती हैं, एक डिब्बे में डाल रही हैं रोज़ाना के, तो यही 50 रुपए एक महीने में 1500 में बदल जाएंगे। अब खुद सोचें, और यही 50 रुपए एक साल में हज़ारों में बदल जाएंगे। तो फ़र्क सोचें, 50 रुपए हज़ारों में तब्दील हो रहे हैं और यही हज़ार लाखों में तब्दील हो जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई मैजिकल चीज़ है, ये सिर्फ़ आपकी समझदारी और आपकी अक्लमंदी का नतीजा है। देखो बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग थोड़े पैसों को, कम पैसों को मजाक समझ लेते हैं ना, वो लोग अक्सर बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं, वो कर्ज़े में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं आपको कह रही कि आप कंजूस बन जाएं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर को भी थोड़ा सा हक दें, आप अपने फ्यूचर के लिए भी बेहतर सोचें। अगर आप रोज़ाना 50 रुपए बचा लेंगी तो यही पैसे कल को आपके फ्यूचर में आपके काम आएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल सादा और सिंपल सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ना बाहर से खाने ऑर्डर करते हैं, ना कोई शॉपिंग ना कोई महंगी शॉपिंग करते हैं और ना ही कोई दिखावे की चीज़ें दिखाते हैं, बस सिंपल सादी सी ज़िंदगी गुजारते हैं और हम लोग कह रहे होते हैं कि ये बेचारे हैं। लेकिन यही लोग जब इनको कहीं कोई मसला बनता है, मुश्किल पेश आती है, तो ये अपने मुश्किल वक्त में मज़बूत रहते हैं, अपना सहारा खुद बनते हैं। और ठीक दूसरी तरफ कुछ लोग हर दिन रोज़ाना बाहर से खाने ऑर्डर करते हैं, हर दिन शॉपिंग करते हैं, हर दिन दिखावा कर रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है, हम अमीर हैं, आज़ाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वही लोग जब इन पे मुश्किल वक्त आता है तो यही लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए नज़र आते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि गरीब जो लोग सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं वो अपने जज्बात को काबू में रखते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं ये लोग सिर्फ दिखावे में ज़िंदगी गुजार देते हैं और ना कोई अपना फ्यूचर बनाते हैं और ना ही कोई जमा कुंजी। ये नहीं कह रही कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें, आप अपनी लाइफ ख़राब कर दें, आप अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दें, आप मोबाइल ख़रीदना छोड़ दें। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ आप अपने फ्यूचर को भी हक दें, आप अपने बेहतर मुस्तकबिल का भी सोचें। सिर्फ आप नहीं हैं, आपके बच्चे भी हैं, उनका फ्यूचर भी है, उनका मुस्तकबिल भी है। आप अपनी ज़िंदगी को आज से ही बदलना शुरू कर दें, आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। इसलिए आज से बस एक छोटा सा फ़ैसला करें कि मैं भी रोज़ाना के 50 रुपये अपने बेहतर कल के लिए रखूँगी या रखूँगा। शुरू में कि आपको अजीब लगेगा कि मैं 50 रुपये रख रही हूँ, इनसे क्या होगा, लेकिन यही पैसे जब आप साल बाद, 6 माह बाद जब देखेंगी ना, तो आपको यही सेविंग मुश्किल वक्त में काम आएगी। आप अपने आप पे भरोसा करने लग जाएंगी, आप अपने आप को फ़ख्र की नज़रों से देखेंगी कि आपने मुश्किल वक्त के लिए पैसा संभाल के रखा है। मुश्किल वक्त ना भी आए, अल्लाह खैर करे, तो आप अपने किसी और बिज़नेस में लगा सकती हैं, आप कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर सकती हैं और शायद यही छोटी सी बचत एक दिन आपकी बड़ी परेशानी में से आपको निकाल दे, आपकी कोई बड़ी परेशानी इससे आसान हो जाए। ये मत भूलें कि गरीब इंसान एक दिन में अमीर होता है, बल्कि एक दिन में कोई भी बंदा अमीर नहीं होता। लेकिन हाँ, समझदार जो इंसान होता है ना, वो आस्ता आस्ता अपने घर के हालात ज़रूर बदल लेता है। और मेरी बहनों, जो मुझे अभी आप देख रही हैं, सुन रही हैं, आप समझदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, इसलिए आज से सेविंग करना शुरू कर दें। देखना, आपको समझ भी नहीं आएगी आपके 50 रुपये कैसे हज़ारों में तब्दील हुए हैं, कैसे लाखों में तब्दील हुए हैं। यही पैसे आपके बच्चों की फ़ीस के काम आ सकते हैं, यही पैसे आपको कर्ज़ से निकाल सकते हैं, यही पैसे किसी की बीमारी में काम आ सकते हैं, यही पैसे आपके किसी कारोबार की शुरुआत बन सकते हैं। देखो बहनों, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ आप 50 रुपये में अमीर बन जाएंगी या फिर आप रातों रात माला माल हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ,
समझदारी से किया गया फ़ैसला एक दिन इंसान को कामयाब और मज़बूत ज़रूर बनाता है। बहनों, मैं आपको ये नहीं कह रही कि अब आप खाना पीना छोड़ दें, आप अपनी ख्वाहिश ख़त्म कर दें, आप कंजूस बन जाएं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता, इसलिए अपने फ्यूचर के लिए पहले कुछ ना कुछ सरमाया ज़रूर रखें। अपने फ्यूचर का प्लान खुद ज़रूर सोचें। अगर आज आप अपने मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता खुद नहीं ढूंढेंगी तो कल को कोई और भी आकर नहीं कहेगा कि आओ मैं आपका सहारा बनता हूँ। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। यही 50 रुपये कल को आपके हज़ारों में तब्दील हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद सोचें, आज हम हंस रहे हैं, कल बीमार, और फिर अचानक परेशानियां, अचानक खर्चे बढ़ जाएंगे, और फिर इंसान उस वक्त क्या ढूंढता है? उस वक्त बीमारी का हल पैसों से मिलता है, और जब पैसे पास होते हैं तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पास सहारा है, मैं अपना बंदोबस्त कर सकता हूँ, मैं दुआई ले सकता हूँ। और यही सहारा आपका एकदम नहीं बनता, बल्कि आपकी रोज़ की छोटी छोटी बचतों की वजह से बनता है। जो आपने रोज़ के थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे होते हैं, यही पैसे आपके काम आते हैं, और ये सिर्फ आपकी समझदारी का नतीजा है। मुझे ना आज एक मिसाल याद आ गई है बातों बातों में ही। एक दिन ना एक अमीर ज़्यादा हाई क्लास फैमिली का आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो उसने फुटपाथ पे देखा कि एक फ़कीर भीख मांग रहा है। तो उसने ना उसके हाथ पे पहला सिक्का रख दिया 1 रुपये का। वो बेकारी पैसे देखकर ना 1 रुपया बड़ा खुश हुआ, और वो अमीर ज़्यादा चला गया। कुछ दिनों बाद वो अमीर ज़्यादा वही फुटपाथ से गुज़रा, तो आज उस फ़कीर के हाथ में 1000 का नोट था। तो वो जो है ना अमीर ज़्यादा, वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने देखा कि उसके पास तो आज 1000 का नोट है। तो उसने पूछा कि फ़कीर से पूछने लगा कि 1000 का नोट तुम्हारे पास कैसे आया? उस फ़कीर ने मुस्कुरा के कहा कि ये तुम्हारी वजह से मेरे पास आया। उसने कहा वो कैसे? तो उस फ़कीर ने कहा कि काफ़ी दिनों पहले तुमने मुझे 1 रुपया दिया था, तो उस दिन से मैंने 1-1 रुपया जोड़ा, मैंने सबसे भीख मांगी, और आज मेरे पास 1000 का नोट है। तो उस अमीरज़ादे को ना उस दिन समझ आई कि 1-1 रुपये की कीमत क्या होती है। देखिए बहनों, ज़िंदगी में अक्सर बड़ी तब्दीलियाँ, बड़ी रकम, ज़्यादा पैसे काम नहीं आते, बल्कि ये आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ और आपकी छोटी छोटी आदतों पे डिपेंड करता है। इसलिए खुदारा दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। सीधा चलें, सादा चलें, मगर मजबूत रहें, क्योंकि दुनिया सिर्फ दिखावे से इम्प्रेस होती है, लेकिन मुश्किल वक्त में इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी समझदारी बचा सकती है। देखिए बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, घर हमेशा समझदारी के साथ बनते हैं, ठीक है? तो आप समझदार भी हैं और असल अंदाज भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सिलाई कढ़ाई के अलावा भी घर बैठकर हक हलाल की कमाई कर सकती हैं। सिलाई कढ़ाई के अलावा भी आप घर बैठे कारोबार कर सकती हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।